I hope that I am audible. Hello. Yes, sir. Okay. So see, first of all, let us discuss the what is capital gain and when it is taxable. Okay. So before we start to learn from the chapter, let us understand some criteria. Okay, when the income is taxable under the head capital gain, because you know that there are 5 heads of income. Okay, you know salary, house property, PGBP, other sources and capital gain. Okay, so capital gain. Now see, under the head capital gain, when the particular income is taxable, as you all know, let's see, every chapter is having its own basis of charge. Okay, like salary में आपको मैंने बताया कि if there is a employer-employee relationship exists between the payer and payee, income is taxable under their salaries. If the assessee carries on the business, the profit is taxable under their PGBP. If assessee earns the income by way of rent, it is taxable under the head house property. Or income is not covered in any other head, then it is taxable under the income from other sources. So same way, there is a section 45 of the Income Tax Act. Okay. So 45. And what section 45? It gives the basis of charge for the capital gain. And what this section says. Okay. So section 45 says that an income is taxable under the head capital gain if following conditions are get satisfied. If following, just a minute, let me check the recording is on or not. Okay. If following conditions are get satisfied, the income will be taxable under the head capital gain. If the following conditions are get satisfied, income will be taxable under the head capital gain. Okay, so what are that condition? So first of all, the first condition is that there must be a कैपिटल असेट. सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट होनी चाहिए. जब तक कैपिटल असेट नहीं है, see there will not be any question of capital gain. So first of all, you must have a capital asset. Now secondly, what is the requirement? That capital asset must be transferred, must be owned by assessee, must be owned by assessee. assessee उसका ओनर होना चाहिए. किसी और के पास कैपिटल असेट हमें क्या लेना देना? The asset must be owned by the assessee. Okay, so this is the second requirement. Now assessee के पास capital asset है, it is owned by him, it does not give rise to the capital gain. The capital gain come into existence when this capital asset is transferred. कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड. ओके, तो अपने कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया हुआ होना चाहिए. तो थर्ड रिक्वायरमेंट इज व्हाट? देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, इट मस्ट बी ओन्ड बाय एसएससी एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड. एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट द कैपिटल असेट the transfer must be during the previous year. Transfer must be during the previous year. Okay, suppose before 10 years if the asset is transferred, हमें ये कोई लेना देना नहीं. Assets should be transferred during the previous year. And fifth condition is that the capital gain is not exempt under section 54, 54B, 54F, 54EC. ओके, और बहुत सारे 54 की सीरीज के सेक्शंस है which gives the exemption to the capital gain. तो ये सभी सेक्शन के अंतर्गत अगर आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं है, अपने कैपिटल
asset previous year में transfer की है. Okay, sorry, first the one point you are missing. See, I am giving the point number 6 here. देखो, first condition is that there must be a capital asset. Second condition is what? It is owned by assessee. It must be transfer. Transfer is during the previous year, and on such transfer there is a gain. तो ट्रांसफर करने पे आपको गेन हुआ है. मतलब अगर सपोज आपके पास एक घर था that you may have purchased for 2 lakh and in this current year you are selling for 10 lakh. मतलब you are selling for 10 lakh and you have purchased for 2 lakh. So the difference between these two is what? 8 lakh. But if this 8 lakh is not exempt during the in these various sections, then capital gain will be taxable. Okay, will be taxable. तो कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है? इफ ऑल दिस कंडीशंस आर गेट सेटिस्फाइड. द कंडीशन नंबर 1 इज दैट कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट. सबसे पहले क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट. कैपिटल असेट होना चाहिए. सेकेंडली, इट इज ओन बाय असेसी, मतलब असेसी उसका ओनर होना चाहिए और वो असेट उसने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर की हुई होनी चाहिए. एंड ऑन ट्रांसफर इफ देयर इज अ गेन, if this gain is not exempt in all these sections, then capital gain will be taxable. So these are the various conditions for making the capital gain taxable. So if all these conditions are get satisfied, then the capital gain becomes taxable. Now we have to understand all these terms. So what is capital asset? What is transfer? What is this various section? Okay. And all these things that we have to understand. So we will start with the understanding of these various terms. Okay. And then we'll learn that how to compute the capital gain. See, I have prepared the material, but first point is get repeated again 2 times. So whenever I will share the material with you, I will remove the point and renumber. Okay. So see, let us learn the same from the material. So what is a capital gain? Capital gain refers to a profit or gain arising on the transfer of asset, transfer of capital asset. So suppose if you transfer the capital asset and on transfer of the capital asset, if any profit is arising to you, any gain is arising to you, then that is called capital gain. Okay? And these gains are chargeable under the Income Tax Act. Okay, the capital gain are categorized into two categories. There are two kind of capital gain. One is a short term and another one is the long term capital gain. Because see, on a short term capital gain and on long term capital gain, the tax rates are different. Okay, and in order to encourage the long term investment, see the capital gains are divided into two categories. Okay, so generally the short term capital gain is chargeable at higher rate. Long term capital gain is taxable at the lower rate. Okay, तो अगर आप कोई भी असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो और कंटिन्यूअसली आप सेलिंग करते रहोगे तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो टू एनकरेज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, और वो हम देखेंगे व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरियस टर्म्स. ओके, नाउ सेम पैराग्राफ इज रिपीटेड हियर. ओके, so what are the key definitions? So first of all, let us understand what is capital asset. See, generally what is capital asset? See, the any asset which is owned by you is a capital asset. Okay, this definition is very broad definition. It says that property of any kind held by a person, whether it is movable, immovable, fixed, circulating, tangible, intangible, all kind of assets are capital asset. So you don't have to remember that what is a capital asset. All the assets are capital asset. What you are supposed to remember, you have to remember that what is not a capital asset. Once you understand that what is not capital asset, okay, so definition is like this, that all the assets are capital assets. Now say out of that it is mentioned that these few are not capital asset. मतलब इतना ही आपको याद रखना है, उसके बाद ये सब तो क्या है, capital asset ही है. So in this way the definition is given that all the assets are capital asset. Property of any kind is a capital asset. But what is excluded? It excludes the personal effect. Personal effect means what?
the property which is personal effect means a property which is used by you in your day-to-day life. Personal effect matlab for personal use. Okay, like suppose if you are wearing the clothes are not a personal, it is a personal effect. It is a personal effect, so it is not a capital asset. Clothes, then this laptop, mobile, car, okay. All these are what? Personal effect. Okay. Personal effect are furniture are not a capital asset. The personal effect means the things which like house, gold, ये सब capital asset है. Again, आप बोलोगे सर घर भी personal effect ही हुआ ना. आप बोलोगे सर मैं गोल्ड पहनता वो भी पर्सनल इफेक्ट हुआ ना. तो गोल्ड और हाउस प्रॉपर्टी और लैंड और बिल्डिंग ये सबको पर्सनल इफेक्ट नहीं गिनते. ओके. अदरवाइज व्हाट एवर थिंग्स यू आर यूजिंग लाइक फर्नीचर, टेलीफोन, टीवी, ओके, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब पर्सनल इफेक्ट है. ओके. तो पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट अ कैपिटल असेट. ओके. कार, लैपटॉप आर दिस आर नॉट कैपिटल असेट. सेम वे इफ यू आर हैविंग अ लैंड, तो लैंड तो मैंने बताया वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है. तो सी land is a capital asset, but if it is a rural agricultural land, मतलब if it is situated in the rural area and it is used for agriculture purpose, again it is not a capital asset. और again this is very important point, stock in trade, मतलब जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, it is not a capital asset, it is a stock in trade for you. Okay, suppose I am having a jewelry shop and if I am selling the gold from my showroom, then in that case, whatever gold I am selling, it is a stock in trade for me, and whatever profit I am earning, it is taxable under the PGBP. But suppose I am not a jeweler, but मेरे पास कुछ ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है जो मैंने 1 लाख रुपए में बाय किया था. नाउ प्राइस इज इंक्रीज एंड इट प्राइस इज रीचेस टू 1 crore. Now I'm selling. So 90 lakh is a capital gain to me. Okay. तो एनीथिंग फॉर विच यू आर डूइंग अ बिजनेस, अगर लैंड भी है, हाउस भी है, बिल्डर के लिए जो घर है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन आपके लिए घर है वो क्या है? कैपिटल असेट है. तो एनीथिंग फॉर विच यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग, मतलब यू आर डूइंग अ बिजनेस, इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड. तो इट इज नॉट अ कैपिटल असेट. जिस चीज का व्यापार कर रहे हो वो कैपिटल असेट नहीं है. ओके. देखो कैपिटल असेट के एग्जांपल्स आपको दिए कि लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सभी क्या है? कैपिटल असेट्स है. तो व्हाट इज नॉट अ कैपिटल असेट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एनीथिंग फॉर विच इज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट. ठीक है. फिर ये आपने कैपिटल असेट समझ लिया. अगर ये कैपिटल असेट आप बेचते हो और गेन होता है तो दैट इज टैक्सेबल. सो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफर. So I have teach you that if the capital asset is transferred during the previous year, then the capital gain is charged. Generally, we are having a very narrow understanding about the transfer. The transfer means sale only that we considered. But see here, see what this point says, that sale is a transfer. तो अगर आप पैसा लेके किसी को असेट बेचते हो तो वो तो ट्रांसफर गिना ही जाएगा. बट एक्सचेंज, असेट के सामने असेट लिया तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ओके. असेट के सामने असेट लिया तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ओके. सपोज I have sold my house to you, and against that you have given me a gold. Okay, so that is treated as a transfer. So exchange is a transfer. रिलाइंक्विशमेंट ऑफ राइट, सपोज असेट आप बेचते नहीं हो लेकिन असेट के साथ अटैच आपका जो राइट है, दैट राइट यू हैव ट्रांसफर, एंड दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज, आप अपना राइट जाने देते हो. सपोज मी एंड माय फ्रेंड हैज परचेज वन लैंड. ओके. So we both have a equal right in the asset. So what I am doing, I am not transferring the asset, but see what I am doing, whatever right I have, एक मेरा जो हिस्सा है वो मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ तू ले ले और मुझे इतना कंसिडरेशन दे दे. तो व्हाट यू डिड, यू हैव रिलाइंक्यूज योर राइट. योर मतलब आपका राइट आप असेट पे था उसको जाने दिया, एंड अगेंस्ट दैट इफ एनी मनी इज रिसीव्ड बाय यू, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ओके. देन कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट यू नो, that I have discussed with you in other sources, कि आपके पास कोई असेट है आपको नहीं बेचनी है लेकिन गवर्नमेंट ले लेती है, that is also treated as transfer. And see, I have discussed with you this many times at the time of discussing the PGBP, कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है उसको कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में. मतलब आपके पास वो आपको सोफा वाला एग्जांपल दिया था, इस फर्नीचर के पड़ा है
ठीक है, वो छोड़ दो, सपोज समझ लो कि गोल्ड है, क्योंकि सोफा तो क्या है पर्सनल इफेक्ट में आता है, वो कैपिटल एसेट नहीं गिना जाएगा। लेकिन कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है, ओके, लाइक सपोज आपके पास गोल्ड घर में पड़ा है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट थी, उसको मैंने अपने ज्वेलरी शोरूम में बेचने के लिए रखा, तो व्हाट आई डिड, आई हैव कन्वर्ट माय कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ओके, एंड से अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो और इनहेरिटेंस में आप असेट को दे देते हो, ओके, वारसा में, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ओके, so transfer does not mean only sale, but it includes the exchange, relinquishment of right in asset, okay, compulsory acquisition of the asset, or it also includes the conversion of capital asset into stock in trade. Okay, so these all are treated as a transfer. Okay, now capital gain, or say suppose if you are having a capital asset, or if you transfer the capital asset, and on transfer if the gain is arise, and if it is not exempt under say that section 54 series, then the capital gain is taxable. But see, capital gain are of two type. Okay, one is a short term capital gain, another one is the long term capital gain. Now किसको short term capital gain कहोगे, किसको long term कहोगे, ठीक है? तो see, if you transfer a short term capital asset, and if the gain is arise, then that is a short term capital gain. Or if you sell the long-term capital asset, and if the gain is arise, then it is called long-term capital asset, long-term capital gain. Now this question is what is short-term capital asset and what is long-term capital asset. So whether the asset is a short-term or long-term, it depends on what, it depends on the period of holding. Okay, so it depends on the period of holding. Okay, तो इसका क्या पीरियड आपने असेट को बेचने से पहले, मतलब द डे ऑन विच यू हैव परचेज द असेट, ओके, देखो द डे ऑन विच, सो विदर द असेट, देखो इफ यू सेल द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो, और ऑन दैट इफ द गेन इज अराइज, देन दैट इज नोन एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. Same way, if you transfer the long term capital asset, and if on transfer of this, if the capital gain is arise, then that is known as long term capital gain. So we have to understand what is short-term capital asset and what is long-term capital asset. So see, asset is a short-term or long-term. It depends on what? It depends on the period of holding. कि what is your period of holding? Period of holding means what? कितना period आपने वो asset अपने पास रखी, मतलब you have to check when you have what is the date of purchase. आपने वो asset को कौन सी date को purchase किया, and the, the date of sale. When you have sale this asset, you have to check the date of purchase and date of sale. Okay, and difference between these two is what? This period of holding. Okay, like suppose I have purchased on 1st April 2000, and today I am selling on 31st March 2023. So what is my period of holding? It is 23 years. Okay, it is 23 years. That is called period of holding. 2000 માં લીધી અને 2023 માં વેચી, તો what is my period of holding? 23 years. Okay, generally we check the period of holding in terms of months. Okay, in terms of months. Okay, and based on that we determine whether the asset is a short-term capital asset or long-term capital asset. So what this point says that, देखो, gain arising on transfer of the capital asset held for less than 36 month, मतलब 36 मंथ से कम. देखो कुछ असेट के लिए वो पीरियड 12 और 24 भी है. ओके, देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. ओके, मतलब असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द असेट. देखो मेजोरिटी ऑफ द असेट आर बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट if it is held for 36 month, more it is held for more than 36 months. Okay, more than 36 months. It is held for less than 36 months. Okay, and exact wording law में ऐसे 36 months, more than 36 months. Okay, so see, if the asset is held for 36 months, more than 36 months, okay, then that is called long term capital asset. And if asset is held for 36 months or less, मतलब એક્ઝેક્ટ 36 में કે એના કરતા ઓછી હિલ્ડ કરી છે તમારી પાસે,
that asset is known as what? Short term capital asset. मतलब if asset is held for more than 36 months, it is a long term capital asset. And if the asset is held for exact 36 months या उससे कम, it is known as short term capital asset. मतलब आपको ये period of holding देखना है, and if the period of holding is exact 36 मंथ और उससे कम है तो इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उससे ज्यादा है 36 मंथ से तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन देखो ये 36 मंथ जो पीरियड आपको मैंने बताया वो मेजोरिटी असेट में एप्लीकेबल है, बट देर आर फ्यू असेट्स फॉर विच द पीरियड इज कंसीडर 24 मंथ्स. मतलब ये कुछ असेट ऐसी है, इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, more than 24 months, then it is treated as a long term. और 24 मंथ एग्जैक्ट और उससे कम रखा है तो इट इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. तो ऐसी कौन सी एसेट है जिसमें आपको 24 मंथ्स देखना है? देखो ये एसेट, अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इफ इट इज अ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर लेस देन 24 मंथ्स और एग्जैक्ट 24 मंथ, देखो यहाँ नहीं लिखा है बट यू मस्ट नो कि एग्जैक्ट 24 मंथ्स भी रखा है और उससे कम रखा है तो इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और मोर देन 24 मंथ्स रखा है तो इट इज अ लॉन्ग टर्म. इस मतलब इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये दो असेट के केस में whether the asset is a long term or short term, that you have to decide based on how many months, based on 24 months. Okay. Now, few assets are there in that the period is taken as 12 months also. So there are few assets for which the period is taken 12 months also. तो देखो, in case of equity shares, okay, equity shares है, या तो फिर units of म्यूचुअल फंड, लेकिन वो कैसा म्यूचुअल फंड है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट है या तो फिर इक्विटी शेयर से आपके पास लिस्टेड कंपनी की है. ओके, तो ऐसी असेट के केस में वेदर असेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट डिसाइड बेस्ड ऑन 12 मंथ. ओके, तो इफ असेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, then it is known as long term capital asset, and it is held for exact 12 month or usse less, then it is known as short term capital asset. Okay, so see, और ये दोनों की मतलब देखो लैंड और बिल्डिंग और इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड है उसको छोड़ के बाकी की असेट्स है, इसके लिए 24 मंथ, इसके लिए 12 मंथ, उसके अलावा बाकी कोई भी असेट है वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, दैट वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन हाउ मेनी मंथ्स, बेस्ड ऑन 36 मंथ्स. Okay, if more than 36 months long term or exact 36 month or less, it is short term. In case of all asset, in case of land and building, 24 months you have to check. In case of listed equity share, equity oriented mutual fund, in that case you have to check the period of 12 months. Okay, and considering that, we can determine the whether the asset is a long term capital asset or short term capital asset. Is it clear up to this stage? Okay. Any doubt, any questions? Hello? No, sir. Okay, so let us go ahead with the next point. देखो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन, वो हम आगे देखते हैं, अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं. इंडेक्सेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, तब मैं आपको ये इंडेक्सेशन बताता हूँ कि व्हाट इज द इंडेक्सेशन. ओके, देखो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर लेस देन 12 मंथ्स रखा है तो, और एग्जैक्ट 12 मंथ और उससे कम है तो इट इज अ शॉर्ट टर्म, और मोर देन 12 मंथ है तो इट इज अ लॉन्ग टर्म. इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ्स देखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इन केस ऑफ एनी अदर एसेट लाइक डेफ फंड, गोल्ड, ओके, ये सभी असेट्स हैं, इन डिबेंचर है आपके पास, तो ये सब में अगर 36 मंथ या एग्जैक्ट 36 मंथ और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म. ओके, नाउ अगेन देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि व्हाई दी असेट्स आर classified into short term and long term. Ultimately, government don't want to charge the tax on the at the same rate on all kind of capital gain. Okay, and that is why the capital assets are classified into short term and long term. तो और देखो ये कैपिटल गेन वाला चैप्टर ऐसा है कि उसमें से कुछ इनकम तो कुछ गेन तो ऐसा है कि whether your income is more than 2,50,000 or not, मतलब whether you are crossing that maximum limit or of exemption or not, you have, so if you have a capital gain you have to pay the tax on that. Okay, तो मतलब उसको आपके टोटल इनकम से भी कोई लेना देना नहीं है. अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से कम है
लेकिन और इसके अंदर कैपिटल गेन का अमाउंट सपोज समझ लो 2 लाख है, तो दैट 2 लाख विल बी टैक्सेबल। ओके, तो इट इज लिस्ट कंसर्न विद, मतलब कैपिटल गेन 99% केस में ऑलवेज टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो देखो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, मतलब सी टाइप ऑफ द कैपिटल गेन और उसके टैक्स रेट हम डिस्कस करते हैं कि क्या रेट से टैक्सेबल होता है। देखो, अगर इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको पता है 12 मंथ से कम, मतलब उस सॉरी वो 36 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, वो आपको मैंने बताया। इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द स्लैब रेट, मतलब आपको जो दूसरी इनकम जैसे टैक्सेबल होती है वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, मतलब इसको आपकी टोटल इनकम से लेना देना है। ओके, मतलब क्या है कि आपकी सभी टोटल इनकम के अंदर ये ऐड भी हो जाएगा, और एज पर द स्लैब रेट जो आपको एप्लीकेबल है, लाइक सपोज यू आर हैविंग अ सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख, सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रुपीज 10 लाख, अदर सोर्सेज इनकम इज रुपीज 5 लाख, और कैपिटल गेन इज ऑफ रुपीज 1 लाख। तो आपको क्या करना है कि आपको ये टोटल ही कर देना है कि भाई मेरी टोटल इनकम 15 और 20 और 21 लाख है, तो वो उसमें से आपने एटीसी के कुछ डिडक्शन लिए, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 15 लाख। नाउ ऑन दिस 15 लाख यू हैव टू अप्लाई दिस स्लैब रेट एंड यू हैव टू make it taxable, but when this capital gain is a short term capital gain, मतलब ये आपकी टोटल इनकम में तभी ऐड होता है कि जब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। बट यू सी, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अराइज ऑन द असेट विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A। ओके, तो क्या है सेक्शन 111A? देखो, अगर आपके पास ये सब असेट है, इफ यू आर हैविंग द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, योर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, मतलब ये सब शॉर्ट टर्म, ये सब असेट है विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। ओके, एंड इफ ऑन दिस if you have paid the security transaction tax, आपको पता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कि whenever you do online trading, okay, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जब आप करते हो, तो सी गवर्नमेंट इज चार्जिंग दी वन टैक्स दैट इज नोन एज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इट इज अपार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट, you are liable to pay the security transaction tax when you deal in the shares which are listed in the stock exchange, when you deal with the units of mutual fund or unit of business trust, then in that case the कैपिटल गेन तो उस पे होगा, वो दूर की बात है, पहले उस पे एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जिस जिस गुड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है, on that if you have paid the STT, then your asset will be treated as what it is treated as asset covered under the section 111A। और ये जो असेट है उस पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, देखो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 12 मंथ, सबका मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया कि ये सबका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 12 मंथ। अगर 12 मंथ से कम पीरियड के लिए रखा आपको आपने, तो उस पे जो गेन हुआ वो कैसा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये सेक्शन के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। और देखो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि ये इनकम मेरी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। यहाँ पे क्या लिखा है कि द इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%, मतलब आप अगर आपको आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो 111A वाले सेक्शन में कवर, जो इक्विटी शेयर वो सब पे हुआ है, तो आपको क्या करना है, बाकी सब असेट है, बाकी सब इनकम है, ऑन दैट यू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। लेकिन ये जो इनकम है, भले आपकी ये सभी इनकम टोटल मिला के 2,50,000 नहीं क्रॉस करती, लेकिन ये जो इनकम है इस पे तो आपको फ्लैट 15% ओके के हिसाब से टैक्स भरना ही है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट दी स्लैब रेट। ओके, लेकिन अगर 111A में जो असेट कवर्ड है जिसपे आपने एसटीटी पे किया है, तो ऐसी असेट पे अगर कैपिटल गेन हुआ, इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो ऑन दैट यू आर लायबल टू पे द टैक्स रेट नॉट अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट, बट यू हैव टू पे द
कैपिटल गेन एट द फ्लैट रेट ऑफ 15%. ठीक है. Then see if there is so capital gain we can classify into two categories. Short term capital gain अगर मैं देखूं तो we can classify into two categories. Short term capital gain एक नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल वाला जो है वो आपका क्या होगा, वो आपके स्लैब में ऐड होगा, मतलब इनकम में ऐड होगा और स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा. अगर वो ट्रिपल A1A वाली असेट है और जिसपे आपने एसटीटी पे किया है तो ये टैक्सेबल होगा एट फ्लैट रेट ऑफ 15%. जो भी कैपिटल गेन है आपकी टोटल इनकम में पहले तो ऐड नहीं होगा, उस स्लैब रेट लागू नहीं पड़ेगा, और आपका भले इनकम 2,50,000 से कम है लेकिन इस पे तो आपको 15% टैक्स भरना ही पड़ेगा. ठीक है. और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओके देखो नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो नॉर्मल वाला कैपिटल गेन देखो एज स्पेसिफाइड इन द टेबल, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो असेट आपने क्या कर रखी है, यू हैव हेल्ड फॉर मोर देन 36 months in case of any other, in case of land and building more than 24 months, or in case of equity share and इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ये पीरियड से ज्यादा रखी है, मतलब आपकी असेट कैसी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और उस पे जो गेन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो देखो ये सब असेट को लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलते हैं और इस पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर ये दो कैटेगरी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको बोला गया है इट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%. तो इस पे आपको 20% के रेट से टैक्स पे करना है, फ्लैट. ओके फ्लैट 20% के रेट से आपको टैक्स पे करना है. ओके और साथ में आपको क्या होगा, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन ऑल्सो. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. तो आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तो मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको फ्लैट 20, मतलब देखो ये आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा, ये जो भी गेन हुआ है उसका 20% आपको टैक्स भरना ही है. कौन सी वाली असेट के लिए, जो 36 मंथ में फॉल होती है, अदर असेट और लैंड एंड बिल्डिंग वाली. लेकिन ये शेयर वाली असेट है, देखो वो वाली असेट में क्या है कि अगर तो वो असेट को बोला जाता है असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वेयर द एसटीटी इज पेड, आपने एसटीटी पे किया है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आपका क्या है, 1 लाख से ज्यादा है. देखो 1 लाख तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये असेट पे, मतलब देखो अगर आपने इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या तो फिर बिजनेस ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या तो फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है, ये जो असेट्स है ये असेट कब लॉन्ग टर्म कही जाती है, इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ. पर ये तीनों असेट हैं और ये असेट आपने ऑनलाइन ट्रेड की है, मतलब थ्रू दी प्लेट ऑनलाइन ट्रेड की है, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग किया है उसका, तो उस पे आपने क्या पे किया होगा, यू मे हैव पेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है. तो अगर ये यहाँ कैपिटल गेन का अमाउंट, अगर इफ द कैपिटल गेन ऑन दिस is up to rupees 1 lakh, you don't have to pay any tax. If it is up to rupees 1 lakh, you don't have to pay any tax. But if it cross 1 lakh, then you have to pay the tax. You have to pay the tax at the rate 10%. मतलब जो भी कैपिटल गेन है आपके 10% के रेट से टैक्सेबल होगा और यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. तो अदर असेट के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, पर ये तीन असेट हैं, इसमें क्या है कि 1 लाख तक का कैपिटल गेन एक्सेम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर का कैपिटल गेन है तो वो टैक्सेबल होगा, वो एट द रेट 10%, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, और सी यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. अंडरस्टूड अप टू दिस स्टेज? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, let us come to the point at how to compute the capital gain. Okay. तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दोनों का गिनने का तरीका दोनों का सेम है. देखो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दोनों का तरीका एक जैसा ही है. ओके तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पहले आपने असेट बेची है, उसका सबसे पहले आप देख लो कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन, मतलब आपने असेट कितने में बेची है वो आप देखो। पहले आप क्या देखोगे कि असेट को का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि असेट शॉर्ट टर्म है या तो फिर लॉन्ग टर्म। अगर असेट शॉर्ट टर्म है तो उस पर होने वाला गेन भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म। ओके, तो अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोल्ड द असेट, ओके, से फॉर ₹10 लाख। ओके, तो 10 लाख में असेट को मैंने बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखूंगा। इसमें से मुझे क्या लेस करना है, तो आप मुझे लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने ये असेट कितने में बाय की थी, सपोज मुझे याद है कि मैंने ये असेट 2 लाख में खरीदी थी, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ। सपोज ये घर है, तो घर खरीदने के बाद मैंने उसका इंप्रूवमेंट के लिए रिपेयरिंग का खर्चा किया, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब ये रिपेयरिंग का खर्चा मैंने सपोज घर लेने के बाद दूसरा 2 लाख का रिपेयरिंग का खर्चा करवाया, इट इज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और जो असेट में बेच रहा हूँ तो उसका ट्रांसफर का खर्चा होगा, तो ट्रांसफर का खर्चा सपोज हुआ, तो स्टैम्प ड्यूटी और वो सब पे करते हो, कोई ब्रोकर को कमीशन पे करते हो, ये सब, ये खर्चा हुआ मेरा 1 लाख रुपये। ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज में यहाँ से, मतलब ये असेट को मैंने बेची 10 लाख में, उसको खरीदी थी 2 लाख में, 2 लाख का रिपेयरिंग का खर्चा किया और 1 लाख ट्रांसफर का खर्चा हुआ। इसके बाद जो भी अमाउंट भी बचा, ये 10 लाख में से मैंने ये 5 लाख निकाल दिया, तो ये बाकी का बचा 5 लाख, ये क्या है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Why I am calling it as a short term capital gain? Because my period of holding was less than 36 months. In case of other asset, in case of land and building, it is less than 24 months, or in case of that equity share and all, if the uh, period of holding is less than 12 months, I can consider that it is a short term capital asset. तो ये जो हुआ और जो गेन हुआ, इट इज माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिनने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर आई कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, व्हेन आई कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, वो सी I have to first of all write down the full value of consideration. Full value of consideration. Full value of consideration से मैंने लिखा 10 लाख रुपया। ठीक है, अभी यहां से मुझे जब लेस करता हूं ना, मुझे लेस क्या करना है, मुझे लेस करना है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपने जितने में परचेस की वही प्राइस आपको लेस करनी है, जितना खर्चा किया वही लेस करना है। लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो आपको यहाँ से लेस क्या करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो आपको यहां से लेस करना है। ओके, फिर अपने असेट में कोई इंप्रूवमेंट किया है तो आपको लेस क्या करना है, इंप्रूवमेंट का कॉस्ट नहीं, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको लेस करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो आप यहां से लेस करोगे। ट्रांसफर के खर्चे में कोई, ये तो आज ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस वो आप लेस करोगे, उसमें इंडेक्सेशन नहीं लगाना है। इंडेक्सेशन दो जगह पे लगता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडेक्स वर्ड लिखा है। ओके, और ये जो डिफरेंस आया दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन आप समझो, ये असेट जो है, ये जो असेट है लॉन्ग टर्म में, वो असेट अगर मेरा इक्विटी शेयर्स होगा लिस्टेड, या तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा, या तो फिर बिजनेस ट्रस्ट के कोई यूनिट हो गया, तो ये केस में आपको मैंने बताया ये तीनों कौन से रेट से टैक्सेबल होता है, 10%, और वो भी कैसे है, विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब यू मस्ट नो दैट अगर ये तीन असेट भले लॉन्ग टर्म है, लेकिन वहां मुझे वो 10% से रेट से ही टैक्सेबल होगा और मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये तीन असेट भले लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन इसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और ये तीन के अलावा कोई भी असेट है विच यू हैव हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ, विच यू हैव हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, तो ये जो असेट है वो सब पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। नाउ व्हाट इज इंडेक्सेशन, लेट अस डिस्कस। यहां तक समझ में आया, दोनों का गिनने का तरीका एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो,
पहले आप फुल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात की कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट वी हैव टेकन एक्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाई लेस किया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जेड लेस किया और एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस किया डब्ल्यू। तो एक्स में से ये तीन वाई जेड एंड डब्ल्यू लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि यू हैव टू टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट आई हैव रिटन एक्स, और उसमें से मुझे क्या लेस करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, कितने में असेट आपने बाय की थी, मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एक्विजिशन। देखो अब ये CII क्या है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखो इनकम टैक्स एक्ट में हर एक साल का CIF दिया होता है। ओके, CII टेबल फ्रॉम 2000 2001 टू 2023 24, ये पूरा एक टेबल हम सर्च कर लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा टेबल, यू कैन सी। तो ये आपको एग्जाम में भी दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हाउ यू विल डिटरमाइन दिस इंडेक्सेशन। तो देखो आपको क्या करना है, आप कैसे करोगे, हाउ यू विल डिटरमाइन दी, you have to take the cost of acquisition multiply by with the CII of the year of transfer or CII of the financial year of acquisition. Okay, for example, I have purchased the asset for rupees 1 lakh, 10 lakh ले लेते हैं, 10 lakh में मैंने कोई asset buy की थी, ठीक है, and that asset I have bought for 10 lakh in the year 2003-4 2003-4 में मैंने कोई असेट एक्वायर की थी, कौन से प्रीवियस ईयर में, इन द प्रीवियस ईयर 2003-4, ठीक है। और ये असेट को मैं अभी बेच रहा हूं 2023-24 में। अब समझो ये असेट लैंड है और वो अर्बन लैंड है, मतलब तो ये असेट मैंने 10 लाख में बेची खरीदी होगी और वो सिटी के अंदर लैंड होगी, तो आज इसकी कीमत सपोज हो गई 10 करोड़ रुपया। ओके, तो ये 10 करोड़ हो गया। अगर मैं ऐसा करूंगा, ये 10 करोड़ में से 10 लाख ही लेस करूंगा, तो मेरा कैपिटल गेन कितना होगा, 90 लाख रुपीस, सॉरी 10 करोड़, 9 करोड़ 9 करोड़ 90 लैक्स, इतना होगा, 9 करोड़ 90 लैक्स कैपिटल गेन। और इसका अगर मैं 20% या टैक्स भर दूं क्योंकि लॉन्ग टर्म है, तो सी ये पूरे पैसे में से 1 करोड़ 80 लाख तो मेरे पास से गवर्नमेंट ले जाएगी। ओके, तो ये गलत होगा क्योंकि क्या है कि 2002-3 की प्राइस के साथ आज की प्राइस को नहीं कंपेयर कर सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इन्फ्लेशन हैज अकर्ड, द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज अकर्ड, एंड सी so these two prices are not comparable. So if you want to calculate the real capital gain, both prices should be bring at par. दोनों प्राइस को एक लेवल पे लानी पड़ेगी, फिर कंपेयर करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, तो ये परचेज वाली कीमत थी उसको 2003-4 की थी, उसको आज के दिन क्या कीमत होनी चाहिए, ओके, उसके साथ कंपेयर करो ना। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने 2-3 में एक्वायर किया था, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख उसकी जो परचेज प्राइस है मैं वो लेता हूं, उसके साथ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई क्या करना है, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर वाले ईयर का CII से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो देखो ये मैंने 10 लाख ले लिया और ये 10 लाख को मैंने क्या किया, जो CII ऑफ 2023 में मैंने बाय किया था, तो व्हाट इज द CII ऑफ 23, तो 23 का CII था 105, तो 105 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और करंट ईयर 23-24 में बेच रहा हूं, तो 23-24 का क्या CII है, 23-24 का 348 है, तो 348 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और ऐसा करने के बाद क्या फिगर आती है, लेट कैलकुलेट 1%,
क्या फिगर आता है बताइए मेरे को। हेलो हेलो हेलो। 33,14,285. 33,14,285। 14,285. 285, ठीक है, सपोज दिस इज द फिगर। मतलब क्या हुआ, देखो मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई करने से क्या किया, कि જે ગઈકાલના 10 લાખ રૂપિયા જે 2003-4 ની જે કિંમત હતી એ આજે કેટલી થઈ ગઈ 33 lakhs। तो इसकी इंडेक्सेशन अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी जो पुरानी प्राइस है वो आज करंट लेवल की प्राइस के साथ कंपेरेबल आ जाएगी। तो यहाँ देखो मुझे 9 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट होता था, उसकी जगह क्या होगा, अभी ये 10 करोड़ में से 33 लाख लेस होगा। ओके, तो मेरे प्रॉपर्टी की 33 लाख होगा तो मुझे 9 करोड़ 65 लाख समथिंग प्रॉफिट होगा। तो क्या है कि दो प्राइस आप कंपेयर कर सको ऐसी लेवल में लाने के लिए तो ये किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे अगर गेन होता है तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। आपको ये एग्जाम में दिया होगा, ये आपको एग्जाम में दिया होगा कि सीआईआई ट्रांसफर की ईयर की क्या है, और ट्रांसफर की ईयर की हर एक बार आप 23-24 की 348 है, आपको याद ही रखना है कि हमारे करंट ईयर की तो सीआईआई क्या है 348, और आगे के सालों की आपको दी होगी एग्जाम में, आपको उससे डिवाइड करना है। सेम वे अगर आपने इंप्रूवमेंट किया है तो कौन से साल में इंप्रूवमेंट किया था वो इंप्रूवमेंट का अमाउंट लिखिए, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। और ये एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में इंडेक्सेशन नहीं होता, ये तो यही साल में आपने किए हैं तो ये करेंगे। तो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो दैट इज द, ये एक्स है उसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करोगे, और डब्ल्यू मींस व्हाट एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, ये करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। बट सी यू मस्ट नो that in case of these asset, equity share units of equity oriented mutual fund, okay, अगर ये 1 लाख तक है तो इसका तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल ही नहीं होता। और ये इसमें कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल तो होगा, और वो टैक्सेबल होगा कितने परसेंटेज से, 10% से। लेकिन ये जो असेट्स होती है उसमें भले वो लॉन्ग टर्म असेट है बट सी यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देखो यही सेम फॉर्मूला, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, व्हाट इज हाउ टू डिटरमाइन द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ओके, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे आप कंप्यूट कर सकते हो, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है वो खर्चा मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल गेन गिना जाता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से तीन चीजें लेस कर दो, आपको कैपिटल गेन मिल गया। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो ये इक्विटी और ये सबको छोड़ने के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है वो किस में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव एक्विजिशन लेस करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करना है, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर लेस करना है। ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। असेट शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। So how to determine the capital gain or how to calculate that capital gain? Understood all of you? Hello? Anyone Yes, has any sir. doubt up to this stage? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Now see, No, sir. नहीं समझ में आया? Hello? Who has a doubt? Please tell me. Anyone has any doubt? No, sir. You, Oh, sir. okay, so I believe that you all have understood. Okay, yes, you don't have any question. Okay. Now, see, once you earn the capital gain, every time capital gain is not taxable. See, in order to reduce your tax liability, or in order to encourage the proper investment, the government has given the certain exemptions. मतलब आपको आपके capital gain पे tax नहीं भरना है, okay? तो they have given certain exemptions कि आपको कुछ करना पड़ेगा कि capital gain का पैसा आया
तो पैसा कोई जगह पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो धनश्री मूव किया तो सुई जगह मैंने हैरान ना करे, जस्ट अ मिनट। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू, कैपिटल गेन को इंप्रूव करने के लिए, मतलब कैपिटल गेन पे टैक्स ना भरना पड़े और उसका टैक्स प्लानिंग प्रॉपर से हो, इसीलिए प्रॉपर डायरेक्शन में आपसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करवाती है कि आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो, हम आपसे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लेंगे। और वो जो आपको एग्जम्पशन देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्शन बना रखे, तो उसके लिए जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 54। देखो काफी सारे 54 सीरीज के सेक्शन है, बट सम ऑफ द इंपोर्टेंट सेक्शंस आई हैव टेकन हियर, 3 सेक्शंस आई हैव टेकन हियर। देखो एक सेक्शन है सेक्शन 54। देखो, तो सेक्शन 54 का जो एग्जम्पशन है वो कहाँ से मिलता है? देखो, एग्जम्पशन इज अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब इफ यू आर हैविंग अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यू डोंट हैव एनी एग्जम्पशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो टैक्स भरना है। बट इफ यू आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, if that long term capital gain is arising from what, देखो आपने जो असेट बेची है वो असेट क्या होनी चाहिए? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है। आपने बेचा क्या है? घर बेचा है जिसमें आप रहते थे, ऐसा कोई घर बेचा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है। एंड इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज री इन्वेस्टेड, मतलब आपको जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट हुआ है वो कैपिटल गेन का अमाउंट आप री इन्वेस्ट करते हो कहाँ पे? इन परचेज और इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब आप नया घर या तो कंस्ट्रक्ट कराते हो या तो फिर नया घर आप खरीदते हो, तो वो केस के अंदर आपको, मतलब आपको देखो नया घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, यू हैव टू री इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर। ओके, मतलब या तो आपको आपने इन्वेस्टमेंट, मतलब सपोज ये साल में मैंने असेट बेची बट लास्ट ईयर ही मैंने नया घर ले लिया है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका भी मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। या तो फिर मैंने ये साल में बेचा तो उसके 2 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट कर देना है, या तो फिर सॉरी नया घर बाय कर लेना है। और कंस्ट्रक्ट करता हूं तो 3 साल के अंदर नया घर मुझे कंस्ट्रक्ट कर देना है। मतलब देखो, नया घर एग्जैक्ट रेडीमेड बाय करना है तो कब तक बाय कर सकता हूँ? क्योंकि यही साल में और अपने आगे के साल में भी बाय किया होगा तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, अगर आप आपने नया घर अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने सॉरी एक सेल करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर भी बाय करते हो, मतलब 1 साल पहले या 2 साल के अंदर नया नया घर आप बाय कर लेते हो वो कैपिटल गेन के अमाउंट से, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, मतलब आपने बेचा भी घर है और खरीदना भी आपको क्या है? घर। कब, कौन से पीरियड में खरीदना है? तो 1 साल पहले खरीदा होगा तो भी चलेगा, और बेची उससे 2 साल के अंदर अंदर खरीदोगे तो भी चलेगा। और आप बोलोगे खरीदना नहीं, मैं खुद कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो 3 साल के अंदर आपने खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना मिलेगा? तो क्या आपने कैपिटल गेन में से कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ओके, मतलब समझ लो कि मेरे पास एक घर था जो मैंने 1 करोड़ में बेचा। सो दिस इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये असेट का मैंने इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये आया मेरा, समझ लो 20 लाख। तो 20 जो भी घर मैंने सपोज खरीदा था 2 लाख में समझो, और 2 लाख का मैंने इंडेक्सेशन किया ऐसा करके, तो मुझे ये वैल्यू मिली, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिली सपोज 20 लाख। मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सपोज है अनदर 10 लाख। ओके, अनदर 10 लाख। ओके, और मेरा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर हुआ है 5 लाख। ठीक है, तो देखो ऐसा करने से मुझे मिला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और असेट जो मैंने बेची है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, वो बेची है और मुझे गेन हुआ। और वो गेन कैसा है? लॉन्ग टर्म में, मतलब ये असेट मैंने 36 मंथ से ज्यादा हेल्ड कर रखी है। ओके, ये सॉरी ये बिल्डिंग के केस में कितना पीरियड है? 24 मंथ। तो 24 मंथ से ज्यादा हेल्ड कर रखा है, तो यहाँ मुझे गेन कितना हुआ? देखो 1 करोड़ में से मैं 25 लाख सॉरी 35 लाख लेस करता हूँ, तो व्हाट इज माय कैपिटल गेन हियर? 65 लाख।
65 लाख मुझे कैपिटल गेन हुआ, अगर मुझे ये 65 लाख पे टैक्स नहीं भरना है, तो सपोज ये मैंने 2023-24 में असेट को बेचा और इतना गेन हुआ, तो मुझे नहीं पे करना है। मुझे अगर सेक्शन 54 का डिडक्शन लेना है तो मुझे क्या करना है, ये जो 23-24 से पहले के साल में, मतलब एक साल पहले, मतलब 22-23 में अगर मैंने एक नया घर ले लिया है, या तो फिर 23-24 के 2 साल के अंदर मैं नया घर बाय करता हूँ, या तो फिर 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट करता हूँ। मतलब देखो आपको क्या करना होता है कि अगर ये वाला सोच रहे हो आप कि पीछे के सालों में बाय करने का, तो आपको एक बैंक में डेजिग्नेटेड कैपिटल गेन अकाउंट होता है, वो अकाउंट ओपन करवा देना है, तो ये कैपिटल गेन का पूरा पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करा दो। फिर 2 साल के अंदर आप नया घर बाय करो या तो फिर नया घर कंस्ट्रक्ट करो। तो आपको देखो अपने पैसा रख दिया है, या तो फिर आगे के साल में आपने ऑलरेडी खरीद लिया है, तो सपोज समझ लो ये 65 लाख में से अकाउंट के अंदर, या तो फिर 65 लाख के से आपने ये 2 साल के अंदर, या यही साल के अंदर आपने क्या किया, 55 लाख का नया घर ले लिया। मतलब आपने नए घर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया, 55 लाख। ठीक है, आपने बैंक बैंक में नहीं रखा, यही साल में आपने नया घर ले लिया। तो देखो आपको कैपिटल गेन कितना होता था, 65 लाख, और अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द कैपिटल गेन इन द न्यू हाउस, तो दोनों में से क्या कम है, तो ये कम है, तो विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज एग्जम्पशन। मतलब ये 65 में से 55 एग्जम्प्ट होगा एंड यू हैव टू पे द टैक्स ऑन 10 लाख ओनली। सपोज आप बोलो कि सर मैं तो 85 लाख नु कर ली, तो 85 लाख नु डिडक्शन नहीं मिले, तो एक इसमें 85 और 65 में से कम क्या है, तो 65, तो 65 का आपको एग्जम्पशन मिलेगा और यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन द कैपिटल गेन। मतलब आपने कितना अमाउंट नए घर में रोका है और व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ योर कैपिटल गेन, ये दोनों को कंपेयर करो और विच एवर इज लोअर दैट इज अलाउड एज ए एग्जम्पशन, तो इतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट सेक्शन 54 सेज। बट देखो सेक्शन 54 का आपको एग्जम्पशन तभी मिलता है कि व्हेन यू आर सेलिंग द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और you are selling the residential house property and you are having a long term capital gain on that, or if you want to save the long term capital gain, तो आपने एक घर बेचा है और घर के बदले में नया घर खरीदा है, कितने पीरियड में, तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 2 साल कोई देखने नहीं आएगा, तो आपका 2 साल के अंदर प्लानिंग है, तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा रख देना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड कैपिटल गेन का अकाउंट होता है उसमें, और वहां नहीं रखा है तो आप 2 साल में बाई कर दो, मतलब तुरंत वही साल में बाई कर लो। ठीक है, या तो फिर 1 साल पहले आपने बाय कर रखा है, तो इन दैट केस यू कैन गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अंडरस्टूड सेक्शन 54? ओके, नाउ सी अनदर सेक्शन is a section 54F. Just a minute. यार मी केव्हा रंगावं तो તમે એને શું કર્યું? તો તે બાબા કેટલી ગરજ છે, તો નીડે એટલા માટે ફોન ચાલી રહ્યો. ये तो आपको तो सारी समझना चलता है. Now we will discuss, sorry. Now we will discuss the another section, that is section 54F. देखो 54F क्या कहता है, देखिए बुलवान बंद करें. See section 54F, the exemption बंद कर दे. Exemption under section 54F. तो 54F का एग्जाम्पशन कब मिलता है, तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल. हेलो, यस, हेलो. Okay, so when you can get the exemption under section 54F? Exemption under section 54F is available if there is a long-term capital gain arise on transfer of any asset other than the residential house property. देखो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 54 है, लेकिन 50 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा की कोई भी कैपिटल असेट अगर आपने बेची और उस पर क्या गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इफ यू हैव सोल्ड एनी असेट,
or on that EPO, the which gain is arise long-term capital gain. And if the net sale consideration is reinvested in purchasing or constructing of a न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब दूसरी कोई असेट से आपको गेन हुआ है और वो गेन आपने कहा इन्वेस्ट किया, घर बनाने में, घर खरीदा आपने सेम पीरियड, एक साल पहले जो असेट बेची उसके एक साल पहले, या तो फिर 2 साल में आप खरीदते हो या 3 साल में कंस्ट्रक्ट करते हो, तो ये सिचुएशन होती है. तो इन दिस पीरियड इफ यू आर डूइंग, मतलब कोई भी असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी यू हैव सोल्ड and the capital gain arise, and that capital gain is a long term capital gain, and whatever capital gain is earned by you, that money you have invested in purchase of the house property. Okay, 1 year prior to the date of transfer, or 1 year, 2 year after the date of transfer, or 3 year after the date of transfer you have constructed. देखो ये आफ्टर 2 year to 3 year बोलता है, उसमें क्या होता है, आपको बैंक में वो पैसे रख देने हैं, फिर वो 3 साल के पीरियड के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना पड़ता है. तो आपने जितना पैसा बैंक में रखा है उतने का आपको एग्जम्पशन मिलता है. और सपोज वही साल में आपने बाय कर लिया, तो जितने में बाय किया उतने का आपको एग्जम्पशन मिलेगा. ओके, तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो वॉट एवर अमाउंट, exemption is proportion to the amount of investment and reinvestment. Okay, मतलब you will get the exemption in that proportion कि capital gain का कितना परसेंटेज आपने इन्वेस्ट किया है. ओके, लाइक देखो 54F का एग्जाम्पशन थोड़ा अलग से कैलकुलेट किया जाता है किसी just a minute. Okay, for example, I have sold any asset other than residential house, और वो असेट को बेचने से मुझे 50 लाख का गेन हुआ. ओके, आई होप earn the gain of rupees 50 lakhs. So this gain is arise to me. Now I want to save the tax on this. So I have decided I want to claim the exemption under section 54F. Okay, तो 54F में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सॉरी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, तो सी एक मिनट आपको, तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लेंगे. In this way you will get the exempt. Proportion means what? Suppose आपने नया घर में 40 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, नए घर में कितना इन्वेस्ट किया, 40 लाख रुपया. ओके, तो आपको 40 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको देखना है कि असेट कितने में बेची. सपोज ये असेट भी, सपोज समझ लो कि जो भी असेट थी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी. ओके, समझ लो आपके पास लैंड थी, ये लैंड आपने 50 लाख में खरीदी थी, ठीक है, और इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में करता हूं तो वो होता है 1,50,00,000, ठीक है, और 1,50,00,000 मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया. और ये असेट मैंने बेची कितने में, तो कि असेट को मैंने बेची 2 करोड़ में. ओके, असेट को मैंने बेची कितने में, 2 करोड़ में. सो दिस इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. एट व्हाट प्राइस आई हैव सोल्ड द असेट, 2 करोड़ में मैंने असेट को बेचा. तो इसमें से मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन लेस करता हूँ तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, से ₹1,50,00,000। सपोज सी देर इज नो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ नहीं है, ठीक है, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं असेट में, लैंड थी इसीलिए, और आपको ट्रांसफर के रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं हुए। ओके, तो देखो आपने असेट को बेची कितने में, 2 करोड़ में, और खरीदी थी कितने में, तो कि 50 लाख में, लेकिन इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 1,50,00,000। तो व्हाट इज योर कैपिटल गेन, माय कैपिटल गेन इज 50 लाख। सपोज दिस इज द सिचुएशन, ये 50 लाख में से आप 50 लाख पे टैक्स नहीं भरना चाहते, तो आपने सोचा कि लेट मी टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54F, और आपने एक नया घर ले लिया, 40 लाख का, तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। तो फॉर्मूला इसकी ये है कि सी you have to determine the exemption under section 54 in proportion. तो how much deduction under section 54F is available, तो आपको ये करना है, देखो ये वाली फॉर्मूला है, ये वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय net consideration. So what is your long term capital gain? So long term capital gain is a 50 lakh, that is a long term capital gain. So 50 lakh, okay, multiply by the amount reinvested. Okay, long term capital gain मल्टीप्लाई बाय अमाउंट री इन्वेस्टेड, तो आपने जो अमाउंट जो री इन्वेस्ट किया है वो, तो डेट इज हाउ मच, 40 लाख, डिवाइडेड बाय क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस अमाउंट बाय द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब 2 करोड़ से उसको डिवाइड करना है। ऐसा करने के बाद जो फिगर आएगी, दैट अमाउंट इज एग्जम्पशन, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। तो कुछ नहीं है, देखो आपको क्या करना है, 50 लाख, ये आपको ऐसा करना है कि भाई ये 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ करोगे, ओके, तो 40 डिवाइडेड बाय 200 करता हो तो आपको मिलेगा 0.2, ओके, और देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, ओके, ऐसा करने से जो फिगर आया, तो दिस इज दी 10 लाख, सॉरी कितना है, 10 लाख। सो 10 लाख रुपीज दैट आई विल गेट एज ए एग्जम्पशन। सो मुझे एग्जम्पशन कितने का मिलेगा, आई विल गेट इन प्रपोर्शन, not the full amount which I have invested. Here what I have to do, I have to use this formula कि when the proportionate net consideration is invested, देखो full consideration invest कर दिया तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन फुल कंसिडरेशन में से अगर आपने, फुल कंसिडरेशन मतलब ये पूरा 2 करोड़ आपको मिला, कोई हाथ में पैसे कितने आए, 2 करोड़, और पूरा 2 करोड़ का आपने घर ले लिया तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका जो भी कैपिटल गेन है उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरे कैपिटल गेन में से भी थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या करना है कि कैपिटल गेन का कितना प्रोपोर्शन, मतलब आपने इन्वेस्ट किया उतना एग्जम्पशन मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज दिस, इससे डिवाइड करोगे आपको ऐसे करना है कि कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस, in new house divided by full value of consideration। ऐसा करने से जो अमाउंट आएगा, this much exemption you will get under section 54F। okay, तो this is the section 54F। एक दूसरा इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 54EC। ओके, सो एग्जम्पशन देखो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही मिलता है। तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC इज अवेलेबल on long term capital gain arise of transfer of any capital asset। देखो कोई भी कैपिटल असेट बेची है और उसमें से आपको कैसा गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड इफ द कैपिटल गेन इज री इन्वेस्टेड, अगर वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया किस चीज में, क्योंकि इन दी बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI मतलब, और REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, ओके, उसमें दूसरे भी बॉन्ड्स अभी आए हैं जिसमें, मतलब आप अभी इतना याद रखिए, REC नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, और रेलवेज के भी कुछ बॉन्ड्स है। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि ये 2 बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ओके, कितने, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख,
સપોઝ સમજી લો કે તમને કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડનો થયો છે, 2 કરોડના બોન્ડ લઈ લેશો તો 2 કરોડનું એક્ઝમ્પશન નહીં મળે. યુ વિલ ગેટ ધ મેક્સિમમ એક્ઝમ્પશન અંડર સેક્શન 54 EC. હાઉ મચ you can get the maximum exemption under section 54 EC. that this is a maximum limit कि 50 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा. ठीक है. देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 अभी उसका कोई यूज नहीं है. देखो ये तो इसको आप निकाल ही देना. मैं जब मटेरियल दूंगा आपको निकाल के ही दूंगा. तो देखो यहाँ पे लिखा है however this exemption is no longer applicable after 1st April 2018. okay, and it is replaced by section 112A. 112A में आपको दिया ही गया है कि 1 लाख तक का आपको कैपिटल गेन होता है ये तीनों असेट पे. ओके, उस जिस पे एसटीटी अगर आपने पे किया तो 1 लाख तक का एग्जेम्पशन आपको मिलता ही है. तो वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या तो फिर बिजनेस ट्रस्ट का ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसके यूनिट से उस पे अगर आपने एसटीटी पे किया और आपको गेन होता है 1 लाख तक तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है. और 1 लाख के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यू आर इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%, लेकिन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, तो सी दिस आर दी वेरियस सेक्शन. ये सेक्शन हमें पढ़ना नहीं है. देखो अब जब इनकम अंडर द हेड मतलब जब भी आप कैपिटल गेन की इनकम कंप्यूट करते हो तो शुड रिमेंबर कि कैपिटल गेन में से कोई एटीसी या एटीसी से एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलता है. देखो यहाँ एक नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर चैप्टर 6 से मतलब एटीसी से लेके एटीयू के कोई भी सेक्शन का डिडक्शन कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगा. आपको दूसरी इनकम में से बेस करना है लेकिन कैपिटल गेन पे में से आपको कोई डिडक्शन एटीसी टू एटीयू का नहीं मिलेगा. ओके, और देखो अगर आप पर्सनल असेट को ट्रांसफर करते हो ओके तो उसके लॉसेस जो है लाइक ज्वेलरी और व्हीकल इज नॉट अलाउड. देखो ज्वेलरी वर्ड निकाल देना. जो ज्वेलरी का लॉस तो कैपिटल लॉस ही गिना जाता है, ये गलत लिखा है. हाँ व्हीकल का लॉस है तो वो कैपिटल लॉस नहीं गिना जाता. ठीक है, देखो इसके रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है. तो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. देखो तो ये सम हम करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. मिस्टर अरुण हैज सोल्ड द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. देखो उसने घर बेचा है इन द प्रीवियस ईयर 2023-24. am I audible? हेलो, अब तक समझ में आया आपको यहाँ तक? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है. ओके, अभी ये सम अच्छे से समझ लेना बेटा. देखो मिस्टर अरुण हैज सोल्ड द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. देखो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने बेचा है 23-24 में एंड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एज फॉलो. देखो आपको सेल प्राइस दी गई है कि उसने एक घर बेचा है 50 लाख रुपए में. ठीक है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसने 15-16 में एक घर खरीदा. देखो देखो फाइनेंशियल कौन सा दिया है 15-16 में. ओके, और वो खरीदा था कितने में 20 लाख में. उसके बाद उसने 18-19 में उसने इंप्रूवमेंट किया. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो उसने इंप्रूवमेंट किया 5 लाख का. ठीक है, तो इतने का उसने खर्चा किया. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर कितना हुआ 1 लाख. ठीक है, और उसने ये जो कैपिटल गेन आया उसमें से 23-24 में उसने इसमें से 1 लाख का नया घर ले लिया और 5 लाख रुपए के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद लिए. देखो सेम ईयर में. ठीक है, जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा उसमें. और आपको दिया है कि देखो 15-16 में उसने घर खरीदे था, उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 250 है CII. तो वो टेबल आपको मैंने बताया था ना वो टेबल में. और 18-19 का CII क्या है तो कि 280 है और हमारे करंट ईयर का CII क्या है 248 है. देखो आपको देखना है असेट कौन सी है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर सबसे पहले तो देखना है कि वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग अगर 24 मंथ से कम रखा है आपने तो इट इज अ शॉर्ट टर्म और उससे ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म. तो ये एसेट मैंने खरीदी थी कितने में कौन से साल में 15-16 में और अभी बेच कौन से साल में रहा हूँ 23-24 में. यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर्स मतलब मोर देन 24 मंथ्स हो गया. ओके, अगर आपने 15-16 में बाय की तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 अराउंड 9 ईयर्स. ओके, 8-9 ईयर्स हो गए. मतलब 24 मंथ से तो ज्यादा है. मतलब आपको ये मंथ गिनने की जरूरत नहीं. प्राइमा फेसी ही दिखता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और उस पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है.
और आपने इंप्रूवमेंट का खर्चा भी 18-19 में किया है, वो भी 24 मंथ्स पहले किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक कोई इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं है, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। तो ये केस में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी देखो मेरा यहाँ उसका कैलकुलेशन दिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका कितना था, 20 लाख, तो मैंने 20 लाख ये लिया। ओके, उसको ईयर ऑफ ट्रांसफर की जो CII है उससे मल्टीप्लाई किया, और ईयर ऑफ एक्विजिशन की जो CII थी उससे डिवाइड किया। तो मुझे देखो ये 20 लाख का अभी बढ़ के मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा 27 लाख। तो मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने यहां से लेस किया। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेस करना पड़ेगा, वो मैंने 18-19 में किया था। तो देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो 5 लाख का इंप्रूवमेंट का मैंने खर्चा किया था, ठीक है, वो 18-19 में किया था। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द करंट ईयर, द ईयर इन विच यू आर डूइंग द ट्रांसफर, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। 18-19 का जो 18-19 में किया तो उसका CII 280 है, तो 280 से डिवाइड किया। ये 5 लाख की बढ़ के कीमत क्या आई, 6,21,429। तो ये लेस किया। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर मैंने लेस किया, मतलब देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस किया, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर लेस किया। ये तीनों लेस करने के बाद मुझे जो फिगर मिला दैट इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट सी आपने क्या किया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 15,38,414 हुआ है। You want to claim the deduction, so that is why you have invested in the new house। तो आपको नए घर में, अपने घर बेचे और नए घर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, सेक्शन 54 का। तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज एग्जम्पशन। तो देखो ये आपको तो कैपिटल गेन हुआ है 15 लाख का, लेकिन आपने नए घर में इन्वेस्ट कितना किया है, नए घर में आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपया। तो 15 लाख से तो कम ही है, तो 15 लाख का आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। और जितने के बॉन्ड लेते हो उसमें मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है, आपने 5 लाख के बॉन्ड बाय किए हैं, तो बॉन्ड का 54 EC का एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब देखो ये जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ था 15,38,414, आउट ऑफ दैट यू विल गेट द टोटल एग्जम्पशन ऑफ 15 लाख। मतलब देखो आपका टोटल कैपिटल गेन कितना है, 15,38,414। out of that you will get the exemption of 15 lakh। so what is your taxable capital gain, आपको ये 38,414 पे कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा। और देखो ये कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओके, अदर देन इक्विटी शेयर एंड ऑल, तो इसका रेट भी आपको पता है कि भाई इसका रेट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट कितना रेट से टैक्सेबल होगा, 20% है। तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, तो सी यू आर सपोज टू पे द टैक्स ऑफ दिस। तो इसका ये अमाउंट का मैंने 20% कैलकुलेट कर दिया। तो आई कैन कैलकुलेट द टैक्स ऑल्सो डायरेक्टली, ये 20% के रेट से ही टैक्सेबल होने वाला है, ये स्लैब में या अदर इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो आई कैन गेट दी फुल एग्जम्पशन, ओके, सॉरी, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। तो 20% के रेट से हमने टैक्स भी कैलकुलेट किया, दैट इज 7683। ओके, so this is the way in which you can calculate the capital gain। See, this chapter is not so simple, it is very difficult, but considering this time constraint I have covered a very small topics, very matlab detailed discussion, I have not discussed this section in that much detail। Okay, but see in exam I want to cover it। Secondly, I want to give you the understanding of this chapter, and that is why I have kept it as a part of your syllabus। There will be a example in your exam। okay, ऐसा एग्जाम्पल कैपिटल गेन का आपको 8 से 10 मार्क में पूछा जा सकता है। उसके साथ कैपिटल गेन का सम आ सकता है, सॉरी कैपिटल गेन का ऐसा भी आ सकता है। देखो इसके बेस पे भी सम आता है कि आपको एक असेट का लिस्ट दिया है और आपको बताया है, आपको पूछा गया है कि डिटरमाइन कि वेदर असेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आपको ये टेबल खास ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा ये एग्जाम्पल, और पूरा 4 पेज का मटेरियल है, एक दो बार पढ़ लीजिए, लेक्चर को अच्छे से एक दो बार रिवाइज करके सुन लीजिए,
If you have any doubt, you can ask me. With this, your chapter capital gain is also over. And with this, I have already discussed with you the other sources. Now we have discussed the chapter capital gain. So both the chapter of unit 2 is over. Okay. And your unit 2 is also over. Okay. Do you have any doubt in this chapter? Any questions? You can ask me. Okay, एग्जाम में यही डायरेक्शन में यही स्टाइल में सम आएगा, अमाउंट में भी डिफरेंट. ओके, अदरवाइज यही डायरेक्शन में ऐसा सिंपल से सम आएगा आपको सिर्फ. और आपको ये इंडेक्सेशन के भी जो कैलकुलेशन करने हैं आपको CII भी दिया होगा. तो you don't have to worry about that कि what how to calculate the indexation. The same manner in which I have calculated the example, this kind of example can come in the exam and it can be have a weightage of 8 marks. और वो जो टेबल बताया उसमें से आप असेट को देखो 36 मंथ एग्जिट और उससे लेस है शॉर्ट टर्म. इन ओके, in case of land and building 24 month or less exempt, or in case of equity share and all if it is 12 month or less short term. और अगर 36 month 24 मंथ और 12 मंथ से ज्यादा पीरियड होल्ड किया है तो इट इज लॉन्ग टर्म. छोटा सा एग्जांपल आपको 5-6 असेट दे दी और आपको पूछा है कि डिटरमाइन दिस असेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. यू शुड आइडेंटिफाई दैट दिस असेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन दैट पीरियड ऑफ होल्डिंग. ऐसा सम आ सकता है एग्जाम में. फिर ये उसके साथ अदर सोर्सेस का भी कंबाइन सम आएगा. सी दैट वी विल डिस्कस दैट व्हिच काइंड ऑफ एग्जांपल कैन बी आस्क्ड इन सॉरी व्हाट विल बी योर पेपर स्टाइल एंड ऑल दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस वंस. मतलब tomorrow, probably by tomorrow evening we will be in a position to complete your whole syllabus. And on Saturday whenever I will come in both classes I will distribute the answer sheet. And let me stop the recording first so that I can discuss the things of the record. Okay, yes, I have stopped the recording. Yes.